हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूरोजेनिक ब्लैडर। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड सबसे बड़ी बात यह इट इज हाईली कंफ्यूजिंग टॉपिक। सो फर्स्ट विल डिस्कस द नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, दैट विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ द न्यूरोजेनिक ब्लैडर। So what is the basics of the nerve supply of urinary bladder? Now when you will see the urinary bladder is having one is known as visceral motor fiber. Now what is the meaning of visceral motor fiber? Visceral motor fibers का मतलब वो fibers those are supplying autonomic supply to the urinary bladder. Clear? Now these visceral motor fibers are of two type. You know that autonomic nervous system is having two parts. So यहाँ पे आपको दो component मिलते हैं, sympathetic and parasympathetic, and these both component will supply the urinary bladder. ठीक है? So पहली supply है visceral motor fibers, और visceral motor fibers मतलब the muscles of your urinary bladder and sphincter supplied by autonomic nervous system. Now the first and most important supply is parasympathetic supply. Parasympathetic supply कहां से आती है? The source of parasympathetic supply is spinal segments S2, S3, S4. This is the question of your exam. When you will see the urinary bladder is receiving the parasympathetic supply from S2 to S4 spinal segment, और जो nerve इस सप्लाई को लेके आ रही है that nerve is known as pelvic splanchnic nerve. Now ये जो pelvic splanchnic nerve है, pelvic splanchnic nerves में होते हैं preganglionic parasympathetic fibers, because ये जो fibers हैं जो कि preganglionic हैं, ये fibers रिले होते हैं ganglias में, और ये जो ganglias हैं they are present near the wall of urinary bladder. ठीक है, मतलब ये हुआ कि when you will see the parasympathetic supply, this parasympathetic supply is reaching to the urinary bladder, and the nerve which is carrying the supply is known as pelvic splanchnic nerve, and these nerve fiber will relay here. Now these are the ganglia, and these ganglia are near to the urinary bladder. Then the postganglionic fibers will arise, and these postganglionic fiber later on supply the muscles of urinary bladder. Clear? So the preganglionic fibers from S2 to S4 spinal segments via pelvic splanchnic nerve and through the inferior hypogastric plexus. ठीक है? So when you will see the nerve is going down, it is forming the plexus. Now the fibers of these preganglionic fibers of your splanchnic nerve will reach to this ganglia, and the plexus which is formed here is known as hypogastric plexus. The ganglia are near the wall of urinary bladder to make contraction of detrusor muscle. So what is the effect of parasympathetic supply? That this detrusor muscle will contract. Now the next part of the visceral motor fiber is sympathetic supply. Now what is the source of sympathetic supply? Answer is your lumbar segments of spinal cord. Now what are the segments? L1 and L2. Some books you may have the segments from T11 to L2. Clear? So the sympathetic supply comes from the thoracodorsal outflow. Thoracodorsal मतलब from the thoracic segment and lumbar segments, and they are reaching to the bladder via lumbar splanchnic nerves to the ganglias, and then here you have the hypogastric plexus, and finally they are supplying the internal urethral sphincter. कहाँ सप्लाई करते हैं ये सप्लाई करते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को. ठीक है, अदर पार्ट इज द सेंसरी पार्ट. ठीक है, अभी आपने देखा मोटर कंपोनेंट फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देन वी हैव द सेंसेशंस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो सेंसेशंस अराइज होते हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के जो सेंसेशंस हैं, दे विल पास थ्रू द बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम.
ठीक है। सो द विसरल सेंसरी एफरेंट फाइबर्स पास अलोंग द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व किसका पार्ट था? पैरासिम्पैथेटिक। एंड ऑल्सो सम फाइबर्स ट्रेवल विद द सिंपैथेटिक नर्व्स वाया हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सेस। एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सेस की हेल्प से सिंपैथेटिक नर्व से होते हुए फाइबर कहां पहुंचेंगे? L1 L2 सेगमेंट में। वाइल ये वाले जो फाइबर्स हैं ये कहां पहुंचेंगे? S2 S3 S4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। सो अगर ये पैरासिम्पैथेटिक से सेंसेशन जा रही हैं देन द डेस्टिनेशन इज S2 to S4, और अगर सिंपैथेटिक से सेंसेशन जा रही हैं देन इट इज L1 and L2 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेजर फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू रन करते हैं, यहां पे सेंसरी फाइबर्स का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉलेंट्री फाइबर। देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या था? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। नाउ व्हेन यू विल हैव द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ योर मिक्चुरेशन, द वॉलेंट्री फाइबर्स आल्सो कम्स फ्रॉम S2 to S4 segments of spinal cord, but they are coming here with the help of pudendal nerve. Which nerve? Pudendal nerve. And pudendal nerve not only supplying your external urethral sphincter, but it also supply our perineal muscles. ठीक है। तो इन नटशेल आपके पास अगर नर्व सप्लाई की हम बात करेंगे तो किस तरह से नर्व सप्लाई आ रही है, फॉर दैट वी हैव दिस डायग्राम फ्रॉम द गैनोंग्स फिजियोलॉजी। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो नर्व सप्लाई तीन जगह से आ रही है। पहली नर्व सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम योर पैरासिम्पैथेटिक सोर्स, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक सोर्स के लिए ये जो S2 S3 S4 से नर्व्स आ रही हैं, दीज आर नोन एज पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। दूसरी सप्लाई आ रही है हमारे पास सिंपैथेटिक सोर्स, दैट इज L1 L2, एंड तीसरी सप्लाई भी S2 S3 से आ रही है, बट इट इज वाया पुडेंडल नर्व। ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, दीज बोथ आर नोन एज इनवॉलेंट्री, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड दिस पार्ट इज योर वॉलेंट्री। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा वॉलेंट्री सिस्टम है या जो पुडेंडल नर्व है, इट ओनली सप्लाई योर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, दिस never supply your urinary bladder. Means we cannot contract the urinary bladder voluntarily. We don't have the voluntary contraction of urinary bladder. We have control, voluntary control on the contraction, but we cannot contract the urinary bladder voluntarily. ठीक है। The another important thing is that your sympathetic and parasympathetic supply, when you will see, the sympathetic supply mainly supply your internal urethral sphincter, which is present here. Now this internal urethral sphincter is mainly supplied from your this part, that is your sympathetic area. Parasympathetic mainly supply your urinary bladder, and parasympathetic system is mainly responsible for micturition. Clear? So who is responsible mainly for micturition? That is the contraction of detrusor is by parasympathetic supply. ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप इफेक्ट्स को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को एक नटशेल में पढ़ोगे तो आपके पास ये क्लियर कट होना चाहिए कि सिंपैथेटिक इफेक्ट का ब्लैडर पे कोई ज्यादा रोल नहीं है। सो इट हैज नो इफेक्ट ऑन द ब्लैडर वॉल, ठीक है। इसका मेन रोल क्या है? इसके दो मेन रोल हैं। पहला, इट इज मेनली सप्लाई द ब्लड वेसल्स, एंड जो दूसरा इसका मेन रोल है कि ये सप्लाई करता है एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर स्फिंक्टर वसाई की। स्फिंक्टर वसाई की मतलब इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जो कि मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट प्रिवेंट द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू विल सी द यूरिनरी ब्लैडर की नेक पे, अराउंड द नेक यू हैव द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? नाउ व्हेन यू विल सी द प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पे प्री प्रोस्टेटिक पार्ट पे हमारे पास स्फिंक्टर है, दैट इज नोन एज इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यू हैव वन मोर स्फिंक्टर, एंड दिस स्फिंक्टर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम इज एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है। अब ये जो स्फिंक्टर होता है ये मेल्स के अंदर मेनली किससे सप्लाई है? सिंपैथेटिक से। ठीक है। और इसका काम क्या है कि एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जो हमारा यहां पे जो सीमन है दैट शुड कम आउट, नॉट इट विल गो बैक इनटू द यूरिनरी ब्लैडर।
ठीक है. So to prevent the retrograde ejaculation, whenever there is a sympathetic stimulation, at the time of sympathetic stimulation, the ejaculation will occur, and at the same time this internal urethral sphincter will contract, and this will prevent the retrograde ejaculation. ठीक है. So the effect on sphincter vesicae to maintain the urinary continence is very minor. क्लियर. सो अगर आप ये देखेंगे कि जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, उस इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर का रोल यूरिनरी कॉन्टिनेंस में होता है, लेकिन इट इज नॉट ए मेजर पार्ट. द मेजर फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर वेसाइकी इज टू प्रिवेंट द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट? नाउ द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेक्ट्यूसर मसल. ठीक है. यानी जो ये यूरिनरी ब्लैडर की मसल है, इसका मेन कॉन्ट्रैक्शन कौन सा सिस्टम कराता है? द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज पैरासिम्पैथेटिक, एंड इट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर वेसाइकी. ठीक है. यानी ये स्फिंक्टर वेसाइकी पे जो सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट है उसको कम करता है. बट अगेन दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज इट हैज बीन स्टडीड दैट internal urethral sphincter is not having the parasympathetic supply. Internal urethral sphincter mainly किससे सप्लाई होता है? सिंपैथेटिक इफेक्ट से. ठीक है. और ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये मेनली किसके अंदर ज्यादा हमें प्रोमिनेंटली सप्लाई करता हुआ दिखेगा? मेल्स में. व्हाई? बिकॉज इट प्रिवेंट द रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन. ठीक है. सो इन नटशेल व्हेन यू आर रीडिंग द नर्व सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, आपको 3 हेडिंग में नर्व सप्लाई पढ़ना है. पहला हेडिंग क्या है? दैट इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आपको 2 पार्ट याद रखने हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. दैट इज योर इनवॉलेंट्री, एंड जो दूसरी सप्लाई है दैट इज वॉलेंट्री, और वॉलेंट्री सप्लाई है पोडेंडल नर्व से. क्लियर. और इनके इफेक्ट्स क्या है कि सिंपैथेटिक कहां सप्लाई करता है? मेनली सिंपैथेटिक सप्लाई योर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. पैरासिम्पैथेटिक मेनली सप्लाई द डेक्ट्यूसर मसल, एंड इट हैज ए वेरी लिटिल एक्शन ऑन इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर. एंड पोडेंडल नर्व इज मेनली और प्योरली सप्लाई your external urethral sphincter to the muscles of perineum, and the external urethral sphincter is voluntary under control. ठीक है. because it is supplied by pudendal nerve. Now what is micturition? देखिए, before starting with the neurogenic bladder you should know what is micturition reflex, how the micturition will take place. So the micturition is a reflex action, and it is in a toilet trained person. We are talking about the person who has the toilet training. We are not talking about an infant, those don't have the toilet training. In those person, it is controlled by higher center of the brain. ठीक है. The reflex initiated by stretch receptors in the bladder wall. क्या हुआ कि as soon as you will have the urine here, जैसे यहां पे यूरिन का कलेक्शन हुआ, इसमें डिस्टेंशन हुआ, स्ट्रेचिंग हुई, और इसकी वॉल में जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो गए. तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन होता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स का, एंड द अफरेंट्स ट्रेवल थ्रू द pelvic splanchnic nerve to S2, S3, S4 segments of spinal cord. ठीक है. सो जैसे ही इसमें स्ट्रेचिंग हुई, यहां से जो फाइबर्स हैं दे आर रीचिंग टू द S2, S3 एंड S4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. और अभी हमने देखा कि अगर फाइबर्स S2, S3, S4 तक जा रहे हैं तो ये कौन सा सिस्टम होना चाहिए? पैरासिम्पैथेटिक. सम फाइबर्स आर रीचिंग फ्रॉम टू द L1, L2, और जो फाइबर L1, L2 में जा रहे होंगे वो किसके थ्रू जा रहे होंगे? सिंपैथेटिक के थ्रू. क्लियर. अब होगा क्या कि द पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट इफेक्ट क्या होगा? ठीक है. ये तो सेंसरी फाइबर्स हैं. These are the visceral sensory fibers which are passing to the S2, S3 segment by pelvic splanchnic nerve. अब जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होगा वो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होगा इस डिसेंडिंग आर्म और मोटर आर्म से. ठीक है. ये जो मोटर आर्म है, ठीक है, ये मोटर आर्म या ये जो अफरेंट फाइबर्स हैं, ठीक है, या ये जो फाइबर्स हैं जो कि efferent fibers हैं, ये efferent या motor fibers, those are supplying the detrusor muscle, will give the signal and there is a contraction of urinary
bladder. ठीक है? So the parasympathetic effect by the pelvic splanchnic nerve, it causes the contraction of detrusor muscle and simultaneously there is a relaxation of sphincter vasicae. ठीक है? But again यहां पे इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पे इसका जो रिलैक्सेशन का जो इंपैक्ट है वो बहुत कम होता है, बिकॉज आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है उसमें मेजर सप्लाई क्या है, सिंपैथेटिक. ठीक है? द पुडेंडल नर्व साथ में वो भी एक्टिवेट हो जाएगी. क्यों? वो भी S2 S3 S4 से ही आ रही है. एंड ये जो पुडेंडल नर्व है, दिस पुडेंडल नर्व विल रिलैक्स द एक्सटर्नल urethral sphincter, that is your relaxation of the perineal muscle and urogenital diaphragm. ठीक है? So the pudendal nerve supplies the external urethral sphincter and perineal muscles to relax. ठीक है? So micturition कैसे हुआ? micturition हुआ सबसे पहले यहां पे जो stretch receptors थे उनमें क्या हुआ, stimulation हुआ. They will carrying the sensation, the fibers. ठीक है? एंड ये जो फाइबर्स हैं ये गए S2 S3 S4 सेगमेंट में, दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और यहां से जो फाइबर्स थे दे आर कमिंग आउट, दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एंड दे आर सप्लाइंग द डेट्रूसर मसल. क्लियर? सो इस रिफ्लेक्स की दो आर्म्स हो गई. ये क्या हो गई, सेंसरी आर्म और असेंडिंग आर्म. ये हो गई डिसेंडिंग आर्म और मोटर आर्म ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. क्लियर? नाउ मिक्चुरेशन कंट्रोल कैसे होता है? ठीक है? इन चिल्ड्रन, अगर आप छोटे बच्चे को देख रहे हो, इफ यू विल सी द चिल्ड्रन, मिक्चुरेशन इज ए सिंपल रिफ्लेक्स एंड टेक प्लेस व्हेनेवर द ब्लैडर डिस्टेंडेड. ठीक है? इट इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ ए न्यूबॉर्न और इन्फेंट एंड इन द चिल्ड्रन, कि जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड में, S2 S3 S4 सेगमेंट में आपका सेंसेशन पहुंचा, वहां से मोटर कमांड नीचे आया, immediately you have the contraction and simultaneously there is a relaxation of the sphincter and the micturition will take place. ठीक है? Now this reflex is working irrespective to the time, irrespective to the place. ठीक है? सो जो चाइल्ड ब्लैडर है या जो चिल्ड्रन में हम मिक्चुरेशन प्रोसेस देख रहे हैं, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन एंड इट इज लोकली वर्किंग. एज सुन एज देयर इज अ डिस्टेंशन देयर इज ए मिक्चुरेशन. ठीक है? बट इन एडल्ट दिस सिंपल स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड पोन्स. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यहां पे हम बात करें टॉयलेट ट्रेन्ड पर्संस की, लाइक यू एंड मी, वी कैन नॉट मिक्चुरेट एट एनी प्लेस. व्हाई? द रीजन इज बिकॉज आवर ब्रेन इज कंट्रोलिंग दिस रिफ्लेक्स एंड दिस इज योर ब्रेन एंड दिस ब्रेन इज सेंडिंग द inhibitory sensations to this reflex centers or micturition centers of spinal cord, and we always look for the proper place for proper time for the micturition. ठीक है? So why the control comes? The control comes later on by the inhibition, and this inhibition comes from the cerebral cortex and pons until we have proper time place are favorable. ठीक है? अब ये जो चीज है, ये चीज बच्चों में क्यों नहीं होती? द रीजन इज बिकॉज दिस इज कंट्रोल्ड बाय द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन and the spinal cord, and that connection is known as your descending tracts. That is known as descending tracts. And बच्चों में descending tracts का myelination complete नहीं हुआ होता है. And because the myelination of these tracts, these neuronal pathway is not completed in the children, that's why they are not having the control of their micturition reflex by brain. Clear? द पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो पोन्स के अंदर मिक्चुरेशन सेंटर है, वंस द माइलिनेशन विल ओवर, वंस द कंट्रोल ऑफ योर हायर सेंटर स्टार्ट्स ऑन दिस मिक्चुरेशन सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, द पोन्टाइन मिक्चुरेशन सेंटर मॉड्यूलेट्स द अपोजिंग एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम. ठीक है? तो जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का हम अपोजिट इफेक्ट देखते हैं, दिस स्टार्ट टू कंट्रोल बाय द पोन्स. The inhibitory fibers pass down with corticospinal tract to the S2, S3, S4 segments of the brain. So brain control कैसे कर रहा है? Brain control कर रहा है pons के through.
दूसरा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां से जो फाइबर्स आ रहे हैं डिसेंडिंग फाइबर्स, दीज आर नोन एज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स, ये कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स कंट्रोल कर रहे हैं S2 S3 S4 सेगमेंट्स को, ठीक है। वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग द स्फिंक्टर यूरिथ्रा विच क्लोज द योर यूरिथ्रा, ठीक है। और जो वॉलेंट्री कंट्रोल हो रहा है, दिस वॉलेंट्री कंट्रोल इज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड इट इज सप्लाइड बाय द पुडेंडल नर्व, ठीक है। सो how the micturition is controlled in a toilet trained person? In a toilet trained person or in a adult, in a normal adult, the micturition is controlled by your cerebral cortex and pons, and they are actually controlling this part, that is your S2, S3, S4 segments of spinal cord, clear? And this is coming from the pons, this is coming with the help of corticospinal tract. And voluntary control of external urethral sphincter is possible because it is supplied by the pudendal nerve, ठीक है। सो ये हो गया कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन। अब जनरली क्या होता है इन द ब्लैडर एम्प्टिंग स्टेज, ब्लैडर एम्प्टिंग अगर आपको करना है तो अंडर कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन योर ब्रेन, हाउ दिस विल हैपन कि जो आपका पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर है, ये पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर सेंड करेगा एक्साइटेटरी इंफ्लुएंस टू द सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी जो हमारा ऊपर पोन्स है, इस पोन्स से फाइबर्स आए एंड ये फाइबर्स कहां पहुंच गए, दीज फाइबर्स आर रीचिंग टू द सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जहां हम बात कर रहे हैं S2, S3 एंड S4 सेगमेंट की। और ये फाइबर्स क्या हैं, दीज आर excitatory, so they will stimulate this center, ठीक है। Now what will happen that the sacrospinal cord produces detrusor muscle contraction while simultaneously sending the inhibitory influence to the thoracolumbar cord, ठीक है। So ये जो है पोन्स, ये साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है कि जो आपका थोरेकोलंबार रीजन है L1 L2 वहां पे इनहिबिटरी इंपल्सेस भेज रहा है, ठीक है। सो जो पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर है उससे दो चीजें हो रही हैं, इट इज सेंडिंग द एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस एंड इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस। इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, L1 L2 पे, एक्साइटेटरी किस पे, S2 S3 S4 पे। यानी इसके एक्साइटेशन से क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ और इसके इनहिबिशन से सिंपैथेटिक सप्रेशन हुआ, ठीक है। सिंपैथेटिक सप्रेशन होने से जो आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होने से आपका डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दोनों के इफेक्ट से यू हैव द मिक्चुरेशन, ठीक है। सो द पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर सेंड्स द एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस टू द सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, दैट प्रोड्यूसेस द डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्शन while simultaneously sending the inhibitory influence to the thoracolumbar cord and suppresses the sympathetic supply, ultimately the internal urinary sphincter relax. So the overall effect is evacuation or micturition, ठीक है। सो ये एक बात हो गई कि टॉयलेट ट्रेन पर्सन में मिक्चुरेशन कैसे होता है। नाउ जब हम ब्लैडर स्टोरेज फेज की बात करेंगे, अगर हमें यूरिनरी ब्लैडर को स्टोर करना है तो इसका उल्टा होना पड़ेगा। सो क्या होगा कि द पोंटाइन सेंटर इनहिबिशन कॉजेस सप्रेशन ऑफ द सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। नाउ जो ये पहले एक्साइटेटरी थे, नाउ अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, इट विल स्टार्ट सेंडिंग द इनहिबिटरी इंपल्सेस। इनहिबिटरी इंपल्सेस दोगे तो यहां पे जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन था अब वो सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस होने से जो कॉन्ट्रैक्शन था वो खत्म हो जाएगा एंड द ब्लैडर स्टार्ट रिलैक्सेशन। इन द सेम वे जो आपका यहां इनहिबिटरी था वो स्टिमुलेटरी हो जाएगा। स्टिमुलेटरी होने से ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई थी जो सप्रेस थी वो अब एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपका जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो पहले रिलैक्स था वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और जो मिक्चुरेशन था वो बंद हो जाएगा एंड द ब्लैडर रिलैक्सेस एंड द यूरिन विल स्टार्ट टू एंटर इनसाइड, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन द इनहिबिशन कॉजेज द सप्रेशन ऑफ द सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस डेट्रूसर मसल रिलैक्सेशन, while
साइमल्टेनियसली सेंडिंग द एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस टू द थोरिकोलंबार कॉर्ड, ठीक है, थोरिकोलंबार पे क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है, and it produces internal urethral sphincter contraction and overall effect is filling or storage of urine. Clear? So at the end what you should need, हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि usually when the bladder fills, जब भी bladder भरेगा, the urine with the urine there is a stretch out, the bladder will stretch out and it send two type of the signals. कौन किसको जाएंगे सिग्नल्स, यूरिनरी ब्लैडर से स्पाइनल कॉर्ड को जाएंगे, ठीक है। वो सिग्नल्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एक सेंसरी सिग्नल दैट गिव यू द अर्ज ऑफ यूरिनेट, हमारे को फील आएगा यूरिनेट करने का, एंड दूसरा द मोटर सिग्नल्स दैट मेक योर ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो जब भी हम मिक्चुरेशन करना चाहते हैं, वी नीड द टू थिंग्स, वन इज द सेंस ऑफ फुलनेस, सो दिस सेंस ऑफ फुलनेस विल गिव यू the desire of micturition, and second thing, the descending fibers or the motor command from the spinal cord that will stimulate the contraction of urinary bladder and relaxation of sphincters, ठीक है। Now what is neurogenic bladder? अब आप बात करोगे कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर है क्या। न्यूरोजेनिक ब्लैडर समझने के लिए हमने ये देखा कि you have the urinary bladder, we have the brain and we have the spinal cord. There are three things. Now this spinal cord is having connection with the urinary bladder, and this spinal cord is having connection with the brain. Now this is the local reflex and this is the higher center control on this local reflex. So if there is a damage of central, peripheral and autonomic nervous system, that may result in the neurogenic bladder. तो अगर यहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन कट जाए, स्पाइनल कॉर्ड और यूरिनरी ब्लैडर का कनेक्शन कट जाए, तो प्रॉब्लम होने वाली है, and that condition is known as urogenic bladder. So neurogenic bladder is a bladder where there is a damage of the central nervous system, peripheral nervous system or autonomic nervous system. Ultimately the neuronal connection between the bladder, spinal cord and brain get damaged, and it may associate with the dribbling. Dribbling means there is a leakage, continuous leakage of the urine, unable to control the stream of urine, inability to fully empty the bladder, that means there is always a residual urine is present in the bladder, and there is a stress incontinence. Stress incontinence means that if there is a increased intra-abdominal pressure at the time of coughing or sneezing, patient is having a complaint of leaking of urine, ठीक है। सो न्यूरोजेनिक ब्लैडर का कॉज क्या है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर का कॉज है इस न्यूरोनल पाथवे में कहीं भी डैमेज होना, ठीक है, एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पेशेंट को ड्रिबलिंग हो रही है, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द स्ट्रीम, ही इज नॉट एबल टू फुली एम्प्टी द ब्लैडर बिकॉज वॉलंटरी उसका रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर नहीं हो रहा है, एंड देयर इज ए इनकॉन्टिनेंस। क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर कितने तरीके के होते हैं, तो पहला सोर्स क्या है हमारे पास, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से जब आप चले तो आया स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जब आप नीचे आए तो फाइनली हमारा आया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो द फर्स्ट साइट ऑफ लीजन इज लॉस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ब्रेन में आपने दो पार्ट पढ़े कि एक होता है हमारा कॉर्टेक्स और दूसरा है हमारा पोन्स, ठीक है। तो अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए, नॉट पोन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द डैमेज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। So if there is a loss of cerebral cortex control, that you have the neurogenic bladder which is known as uninhibited. Uninhibited मतलब कि जो पोन्स से सिग्नल आ रहे हैं उनको इनिबिट करने वाला जो सेंटर था, उनको जो कंट्रोल करने वाला सेंटर था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो डैमेज हो गया है। सो इफ द कॉर्टेक्स इट विल गेट डैमेज, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द स्ट्रोक, जहां पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर्टिकुलरली फ्रंटल लोब, पैरासेंट्रल लोब्यूल, अगर इनमें इंजरी हो जाए तो ये जो पोन्स को कंट्रोल कर रहे थे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो पोन्स से सिग्नल आएंगे ब्लैडर पे, नाउ दे आर कमिंग अनइनहिबिटेडली और कंटिन्यूअसली,
and that is known as uninhibited neurogenic bladder. दूसरा, immediate effect of spinal cord lesion above the sacral segments. तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे सैक्रल सेगमेंट्स होते हैं, दैट इज योर S2, S3, S4. अगर इसके ऊपर कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होता है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? एटोनिक ब्लैडर. इमीडिएट इफेक्ट. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ इफ the time will pass in the same condition, if we'll see the patient after 1 month or 2 months, so after few days or the months, the spinal cord lesion above the sacral segment converted this bladder in the automatic reflex bladder. ठीक है. so देखिए इन दोनों कंडीशन में आपका लीजन एक ही लेवल पे है, दैट इज अबव द सैक्रल सेगमेंट. बट जब लीजन हुआ उस दिन वो कहलाया एटोनिक ब्लैडर, और वो एटोनिक ब्लैडर की जो कंडीशन है, इट मे रिमेन फॉर फ्यू डेज और फॉर से 1 or 2 months, एंड आफ्टर दैट यू हैव द कन्वर्जन ऑफ दिस एटोनिक ब्लैडर इनटू द ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स ब्लैडर. ठीक है. सो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? एक ही जगह लीजन होता है. ठीक है. तीसरी कंडीशन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड लीजन इन्वॉल्व सैक्रल सेगमेंट, यानी जो सैक्रल सेगमेंट्स हैं ये S2, S3, S4, अगर ये ही डैमेज हो जाएं, अगर आपका सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो जाए, देन यू हैव ए लीजन इज नोन एज ऑटोनॉमस. व्हाट इज दैट? ऑटोनॉमस. And the last is that lesion involve the efferent sensory neurons, that is known as atonic bladder or motor bladder. ठीक है. so अगर जो आपके efferent motor neuron है, not sensory, it is efferent motor neuron. If the efferent, because sensories are always afferent, so it is a typing mistake. So if the lesion involve efferent motor neurons which are going to supply the bladder, if they will get damaged, then we have motor paralytic bladder, which is also one of the type of atonic bladder. So यहां पे आप atonic bladder दो जगह देखते हैं. एक तो वो कंडीशन जो कि इमीडिएटली आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हुई है, और दूसरा अगर ब्लैडर को जो मोटर सप्लाई आ रही है रिफ्लेक्स की, उसकी अगर मोटर आर्म को काट दिया जाए, ओनली मोटर आर्म, then also we have the atonic bladder. ठीक है. so now we'll see one by one. First is uninhibited neurogenic bladder. uninhibited neurogenic bladder के अंदर लीजन कहां हुआ है? cerebral cortex में. so now what will happen that जो हमारा pons है, now this is the pons, now this pons is sending the sensation to S2, S3, S4 segment, एंड यहां से जो पैरासिंपैथेटिक सप्लाई है वो इस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर रही है. ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करने से यू हैव द मिक्चुरेशन. ठीक है. अब ये जो सेंसेशन आ रहे हैं विच आर एक्साइटेटरी एंड दे आर स्टिमुलेटिंग दिस सेंटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. इस आउटफ्लो को रोकने के लिए, इस आउटफ्लो को रोकने के लिए कौन काम कर रहा था? ब्रेन. ठीक है. ये जो ब्रेन है दैट इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, पैरासेंट्रल लोब्यूल, वो जो इसको इनिबिट करते थे. सो नॉर्मली क्या होता? ये इसको इनिबिट करता, ये इसको इनिबिट करता, तो ये आउटफ्लो बंद हो जाता, ये आउटफ्लो बंद हो जाता तो ये रिलैक्स कर जाता. बट अब ये तो हो गया डैमेज, सो इट इज नाउ नो मोर इन द पिक्चर. सो बिकॉज इट विल गेट डैमेज, देयर इज ए लीजन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो यहां से जो एक्साइटेटरी आउटफ्लो आ रहा है, इट इज persist, so it is uninhibited. The inhibition is no more, so it is uninhibited outflow excitation for the S2, S3, S4 segments of spinal cord, and that's why there is a contraction or hypertonia is maintained into this bladder wall. एंड चूंकि ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो इसमें जो यूरिन का कलेक्शन है वो कम अमाउंट में होगा. सो इट इज द कंडीशन वेयर यू हैव द डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इनिबिशन ऑफ पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर. जो पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर का इनिबिशन होने वाला था बाय द कॉर्टिकल स्ट्रक्चर इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ द डैमेज इन ब्रेन. ठीक है. सो ये हुआ आपका अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर. नाउ दूसरा स्पाइनल शॉक क्या होता है? देखिए अभी मैंने बताया कि हम
पढ़ेंगे। और दो तरीके के ब्लैडर, एक होगा एटॉनिक और एक होगा ऑटोमेटिक। ये दोनों ब्लैडर रिलेटेड हैं कंडीशन से जिसको बोलते हैं स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक क्या होता है? इन केस ऑफ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, यानी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड को आपको थ्रू एंड थ्रू कंप्लीटली ट्रांजैक्ट कर देना है, ठीक है, अबव द सैक्रल सेगमेंट। बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्लैडर की। तो हम ब्लैडर के केस में कहां पे सेक्शन करेंगे? अबव सैक्रल सेगमेंट। यानी यहां पे सपोज यू हैव द S2, S3, S4 और हमने इस स्पाइनल कॉर्ड को कट किया अबव द सैक्रल सेगमेंट्स, देयर इज ए लॉस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड मसल टोन। तो होगा क्या कि बिलो द लीजन, जिस लेवल पे लीजन हुआ उसके नीचे वाले एरिया में आपका जो रिफ्लेक्स है वो खत्म हो जाएगा और जो टोन है मसल टोन वो चली जाएगी, ठीक है। दैट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दिस इज नोन एज स्पाइनल शॉक। दिस शॉक इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस। हम हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंस की वजह से शॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे स्पाइनल कॉर्ड को काट रहे हैं। तो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, वो जो न्यूरोलॉजिकल शॉक है उसकी हम बात कर रहे हैं, नॉट हीमोडायनामिक। सो यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? व्हेन यू विल डू द कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कि जिस लेवल पे भी आपने स्पाइनल कॉर्ड को काटा है उसके नीचे के जितने भी सेगमेंट्स बच गए, उन सेगमेंट्स के रिलेटेड जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे और उनसे, उन स्पाइनल नर्व से जो मसल सप्लाई हो रही थी उनमें हाइपोटोनिया हो जाएगा या वो फ्लैसिड हो जाएंगी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज टू द सेवरल वीक, और ये जो स्पाइनल शॉक की कंडीशन है ये आपको फ्रॉम द डे ऑफ दिस इंजरी टू सेवरल वीक्स परसिस्ट करती है, ठीक है। एंड आफ्टर द डैमेज ऑफ द कॉर्ड हैज अकर्ड, ठीक है। सो वंस द कॉर्ड हैज डैमेज अकर्ड, this spinal shock condition persists from few days to the several weeks. The micturition reflex are suppressed because we are talking about the neurogenic bladder. So यहां पे क्या होगा? कौन सा रिफ्लेक्स चला गया? There is a micturition reflex will suppressed in the state of spinal shock caused by sudden loss of facilitative impulses from the brainstem and cerebrum, ठीक है। तो जो ऊपर से अभी हमने देखा क्या आते हैं, पॉन्स से स्टिमुलेशन आता है। किसको स्टिमुलेशन आता है? इस सेगमेंट को आता है। तो जो सेगमेंट को स्टिमुलेशन ऊपर से आ रहा था अब वो नहीं आएगा बिकॉज आपने कट कर दिया इसको। सो कट करते से ही जो स्टिमुलेशन आ रहा था वो खत्म हो गया। खत्म होते से ही जो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है वो काम करना बंद कर देगा एंड देयर इज ए सडन फ्लैसिडिटी अकर्स इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन फर्स्ट देयर इज ए एटोनिक ब्लैडर। सो जब तक स्पाइनल शॉक की कंडीशन बनी रहेगी, तो स्पाइनल शॉक की कंडीशन कब तक बनी रह सकती है? कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक, ठीक है। तो जब तक स्पाइनल शॉक की कंडीशन बनी रहेगी तब तक ब्लैडर वॉल फ्लैसिड रहेगी एंड यू हैव एटोनिक ब्लैडर। एंड एज सुन एज द स्पाइनल शॉक फेज विल डिसअपियर, जैसे जैसे स्पाइनल शॉक का फेज गायब होने लगेगा, द ब्लैडर इज कन्वर्टेड इनटू द रिफ्लेक्स ब्लैडर और ऑटोमेटिक ब्लैडर, ठीक है। So now first we'll discuss what is atonic bladder in case of spinal shock. It occurs during the phase of spinal shock where the pathway from micturition center of brain is destroyed. So जो आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन से जो सेंटर की तरफ फाइबर्स आ रहे हैं, कौन से सेंटर की तरफ? S2, S3, S4 सेगमेंट की तरफ, ये फाइबर्स कट हो गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू हैव द एटोनिक ब्लैडर। यहां पे हो क्या रहा है? सो इट लास्ट फॉर द फ्यू डेज टू द सेवरल वीक्स, दैट इज द योर कंडीशन ऑफ स्पाइनल शॉक। नाउ एटोनिक मींस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर, इट मींस ब्लैडर इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस एटोनिक ब्लैडर इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर पेशेंट्स आर अनेबल टू स्पॉन्टेनियसली यूरिनेट। जो पेशेंट है ना वो खुद मिक्चुरेशन नहीं कर सकता, ही इज नॉट एट ऑल एबल टू यूरिनेट ड्यू टू द इनसफिशिएंट डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्शन। प्रॉब्लम क्या हो रही है उस पेशेंट में कि जो डेट्रूसर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक्साइटेटरी इंपल्स ऊपर से आ रहे थे वो अब बंद हो गए क्योंकि आपने ऊपर से आने वाले इस रास्ते को काट दिया
एंड बिकॉज ऑफ द सडन लॉस ये जो रिफ्लेक्स काम कर रहा था, ये रिफ्लेक्स भी जनरली इस रिफ्लेक्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस रिफ्लेक्स को ऊपर के न्यूरॉन्स ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नाउ देखिए चाइल्ड ब्लैडर में क्या होता था कि चाइल्ड ब्लैडर में तो ये कंट्रोल था ही नहीं, बट फिर भी ये रिफ्लेक्स काम कर रहा था। लेकिन इन ए टॉयलेट ट्रेन्ड पर्सन जब माइलिनेशन पूरा हो गया तो इन न्यूरॉन्स को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू हो गया। तो ये जो न्यूरॉन्स थे, नाउ दीज न्यूरॉन्स एक्लेमेटाइज, और यू शुड से नाउ दीज न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन्स का ऊपर से हायर सेंटर कंट्रोल डेवलप हो गया। हमारा ब्लैडर क्या था? चाइल्ड ब्लैडर था, यानी उस ब्लैडर में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स काम कर रहा था, देयर इज ए नो हायर कंट्रोल। बाद में हायर सेंटर कंट्रोल आ गया, हायर सेंटर कंट्रोल आने के बाद आपने फिर से इस हायर सेंटर कंट्रोल को कट कर दिया, तो वापस ये ब्लैडर किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? इस चाइल्ड ब्लैडर में, यानी रिफ्लेक्स ब्लैडर में। मेरी बात समझिए कि जब हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो पहले एक चाइल्ड का जो ब्लैडर था वो इस लोकल रिफ्लेक्स से काम कर रहा था, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे हायर सेंटर का कंट्रोल आ गया, तो इस रिफ्लेक्स को एक आदत पड़ गई, एक हैबिचुअल ही क्या हो गया ये, दिस द हैबिचुअल थिंग इज दैट नाउ इट इज वर्किंग ओनली ऑन द कमांड ऑफ हायर सेंटर। अब आपने वापस से इस हायर सेंटर को काट दिया तो फिर से ये ब्लैडर रिफ्लेक्सली काम करना शुरू कर देगा, बट उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, और वो टाइम होता है फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स। सो अल्टीमेटली ये जो हायर सेंटर कंट्रोल ब्लैडर था वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बैक टू द चाइल्ड ब्लैडर और रिफ्लेक्स ब्लैडर। ठीक है, सो अब इस एटोनिक ब्लैडर में प्रॉब्लम क्या होने वाली है? इस एटोनिक ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी कि देयर इज नो कॉन्शियस अवेयरनेस। क्यों कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि यहां पे तो आपका सेंसरी फाइबर आ रहा है, लेकिन ये सेंसरी फाइबर सेंस ऑफ फुलनेस को ब्रेन में नहीं ले जा रहा, क्योंकि यहां पे आपने स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू एंड थ्रू पूरा काट दिया। सो पेशेंट इज नॉट एबल टू अवेयर अबाउट द फुलनेस ऑफ द ब्लैडर एंड देयर इज द अबाउट एंड इट विल लीड टू द रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, सो पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसका ब्लैडर भर रहा है, तो वो क्या होगा? पेशेंट को इनिशियल स्पाइनल शॉक के केस में कंप्लेंट क्या होती है कि यूरिन रिटेंशन होने लगता है। ठीक है, नाउ द मेन सिम्टम ऑफ द एटोनिक ब्लैडर is urine spill out of bladder. The spilling of urine is there through the urinary bladder and this is known as overflow incontinence, means there is a continuous leaking of urine occurs. ठीक है, हुआ क्या कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर था, इस यूरिनरी ब्लैडर की वॉल हो चुकी है फ्लैसिड, एटोनिक, और ये वॉल धीरे 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 इस तरह से मैक्सिमम कैपेसिटी तक डायलेट हो गई। अब एक पॉइंट के बाद, तो जब तक ये पूरा भर नहीं गया, डिस्टेंशन हो नहीं गया, तब तक आपने इसको क्या नाम दिया? रिटेंशन ऑफ यूरिन। नाउ वंस दिस ब्लैडर इज फुल ऑफ द यूरिन, नाउ व्हाट विल हैपन दैट यहां पे जो स्फिंक्टर है, उस स्फिंक्टर से इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, अब यहां पे कंटिन्यूअस ड्रॉप बाय ड्रॉप लीकेज स्टार्ट हो जाएगा and patient will have the complaint of overflow incontinence. Incontinence means we are not able to hold the urine and overflow means कि जैसे ही इसमें थोड़ा भी अब यूरिन ऐड होगा वो इमीडिएटली यहां से ओवरफ्लो होने लग जाएगा and it remains full. Having a constantly full bladder, so the bladder is always remain full. Then and then only you have the overflow incontinence and it may causes the discomfort to the patient. Bladder wall muscles are but obviously relaxed because it is atonic or flaccid bladder. External urethral sphincter जो है वो contracted रहता है। External urethral sphincter contracted क्यों है? Because external urethral sphincter को सप्लाई कहां से आ रही है? S2, S3, S2, S4 सेगमेंट से with the help of pudendal nerve. अब ये जो pudendal nerve है, ये pudendal nerve किसके कंट्रोल में थी? ब्रेन के कंट्रोल में। ये ब्रेन इस पुडेंडल नर्व को क्या दे रहा था? इनिबिटरी। नाउ व्हेन यू विल हैव द इनिबिटरी इंपल्स, एट दैट टाइम द आउटफ्लो विल स्टॉप एंड दिस स्फिंक्टर विल रिलैक्स। बट यहां पे ये कनेक्शन तो है ही नहीं, आपने यहां से फाइबर्स को कट कर दिया, तो इस पुडेंडल नर्व का जो आउटफ्लो आ रहा है उसको कंट्रोल करने वाला हायर सेंटर का जो रिलेशन है वो नहीं है। सो बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल ऑन द S2, S3, S4,
That's why the pudendal nerve will keep this sphincter contracted. ठीक है? So the external urethral sphincter remain contracted and the bladder becomes greatly distended and finally there is a overflow. ठीक है? Atonic bladder in motor paralytic bladder. ठीक है? अभी मैंने बताया आपको कि एटोनिक ब्लैडर का एक और टाइप है. दूसरा टाइप क्या है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो S2 S3 सेगमेंट है, ये S2 S3 S4 सेगमेंट भी यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रहा है. इसकी दो आर्म है, एक आर्म जो सेंसेशन लेके गई और एक आर्म जो सेंसेशन यहां पे इस पे मोटर कमांड लेके आई. अब आपने इस मोटर पार्ट को कट कर दिया. हम सिर्फ यहां की बात कर रहे हैं. वी आर नाउ नॉट कटिंग द स्पाइनल कॉर्ड. यहां पे जो हमने पहले स्पाइनल कॉर्ड को काटा था स्पाइनल शॉक के केस में, वहां भी हमने एटोनिक ब्लैडर देखा था. यहां भी हम एटोनिक ब्लैडर देख रहे हैं. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कट कर दिया तो भी एटोनिक ब्लैडर होगा और अगर मोटर सप्लाई को सिर्फ कट किया तो भी एटोनिक ब्लैडर होगा. क्यों? क्योंकि यहां भी नाउ सप्लाई खत्म हो गई तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. नाउ दिस इज ऑल्सो बिकम फ्लैसिड. ठीक है? बट दोनों में एक डिफरेंस है. क्या? कि चूंकि यहां पे आपने पूरा स्पाइनल कॉर्ड कट कर दिया था तो जो सेंसरी सप्लाई थी यहां से जो ब्रेन में जाने वाली थी वो भी कट हो गई. लेकिन इस केस में हमने सिर्फ कट यहां लगाया है तो जो सेंसेशन है दे विल रीच टू द ब्रेन. सो पेशेंट इज अवेयर अबाउट द फुलनेस. पेशेंट को ये पता चलेगा कि मेरा ब्लैडर भर रहा है. पेशेंट को ये पता चलेगा कि मेरा ब्लैडर डिस्टेंड हो गया है. सो देयर इज ए नॉर्मल अवेयरनेस. सो अवेयरनेस इज नॉर्मल बट इन दिस कंडीशन द अवेयरनेस इज नॉट देयर. द ब्लैडर कैपेसिटी इज नॉर्मल. वॉलेंट्री ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. यहां पे भी वॉलेंट्री ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता पेशेंट. क्यों? बिकॉज ये जो मोटर सप्लाई आ रही थी इसको हमने काट दिया है. ठीक है? सो अल्टीमेटली यहां भी क्या होगा? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. यानी ये ब्लैडर फुल हो जाएगा और उसके बाद यहां से लीकेज शुरू हो जाएगी. ठीक है? सो दोनों ही केस में चाहे वो एटोनिक ब्लैडर ड्यू टू स्पाइनल शॉक हो या एटोनिक ब्लैडर ड्यू टू दिस मोटर आर्म के कटिंग से हो, दोनों ही केसेस में ब्लैडर कैसा हो गया? फ्लैसिड. और दोनों ही केसेस में पेशेंट को कंप्लेंट क्या होगी? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स ब्लैडर और स्पास्टिक ब्लैडर. ये जो ऑटोमेटिक ब्लैडर है, ये ऑटोमेटिक ब्लैडर किसके बाद हुआ? ये एटोनिक ब्लैडर के बाद की नेक्स्ट स्टेज है इन केस ऑफ स्पाइनल शॉक. So it occurred after the patient recovered from spinal shock. जैसे जैसे पेशेंट स्पाइनल शॉक के बाद रिकवर होने लगता है, the lesion of spinal cord is above the level of S2, S3, S4 segment. तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में this is your S2, S3 and S4 segment. लीजन कहां था? लीजन इसके ऊपर था. ठीक है? This is the condition of spinal shock. Now the patient is recovering from the spinal shock. अब ये जो फाइबर्स आपने देखे कि जो नीचे आ रहे थे, जो कट गए, ये फाइबर्स किन न्यूरॉन्स के थे? जो ब्रेन में थे. तो ये जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं ये क्या कहलाते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन. सो इनके एक्सॉन्स चूंकि आपने काट दिए तो स्पाइनल शॉक इज ए अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज. आंसर इज अपर मोटर न्यूरॉन. So when you will have the upper motor neuron disease, or you can say when we are cutting this spinal cord, we are actually cutting the fibers of upper motor neuron. And इस condition में पहले एटोनिक ब्लैडर होता है और धीरे धीरे पेशेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिफ्लेक्स ब्लैडर में. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि पहले चाइल्ड ब्लैडर था जो कि अनट्रेन्ड था, अनट्रेन्ड से ट्रेन्ड ब्लैडर बना और ट्रेन्ड ब्लैडर बनने के बाद अब आपने उसका जो कंट्रोल था वो कट कर दिया तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिफ्लेक्स ब्लैडर में, जो चाइल्ड में नॉर्मली काम करता है. ठीक है? द ब्लैडर फिल्स, ब्लैडर भरेगा और अपने आप रिफ्लेक्सली खाली हो जाएगा. यानी जो लोकल रिफ्लेक्स है वो लोकल रिफ्लेक्स अब एक्टिवेट हो गया. लोकल रिफ्लेक्स अब एक्टिवेट हो गया. तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर था, इस यूरिनरी ब्लैडर से क्या हुआ? सेंसेशन गया और फिर यहां से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आया और ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड यू हैव द मिक्चुरेशन. सो जो न्यूरॉन्स होते हैं, दीज न्यूरॉन्स हैव देयर प्रॉपर्टी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूरॉन्स दैट आफ्टर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स they regain their excitability
and because of their regain excitability the reflex start to work. ये रिफ्लेक्स काम करना शुरू कर देता है बिकॉज ये न्यूरॉन्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. सो वॉलेंट्री इनिबिशन ऑफ द मिक्चुरेशन इज नॉट देयर. वॉलेंट्री इनिबिशन क्यों नहीं है? बिकॉज जो ब्रेन का कंट्रोल था वो है ही नहीं, आपने उसको काट रखा है. When spinal shock ends, जब स्पाइनल शॉक एंड होता है तो हमें पता कैसे चलेगा? द स्पाइनल रिफ्लेक्स बिगन्स टू रिटर्न. जो ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं ये वापस आने लग जाते हैं. ब्लैडर इंस्फिंक्टर रिफ्लेक्स इज फर्स्ट रिस्पॉन्स टू अपीयर एंड इज द साइन दैट द स्पाइनल शॉक फेज इज एंडिंग. सो जो ब्लैडर इंस्फिंक्टर है वो काम करने लगता है, जो मसल है ब्लैडर की वो भी काम करने लगती हैं, एंड दीज आर द साइंस की जो आपका स्पाइनल शॉक है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. सो इन केस ऑफ द ऑटोमेटिक और रिफ्लेक्स ब्लैडर देयर इज एबिलिटी टू रिटेन द यूरिन इज रीस्टोर्ड. नाउ पेशेंट थोड़ा यूरिन होल्ड करने लग जाता है. यानी अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वहां पे ओवरफ्लो ड्रिबलिंग हो रही थी, जो पेशेंट है उसके कंप्लेंट क्या थी? कंटिन्यूअस यूरिन हमारा जो है लीक हो रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू होल्ड द यूरिन. वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है. द रिटेन ऑफ द यूरिन इज रीस्टोर्ड. नाउ द ब्लैडर इंस्फिंक्टर टोन में अलाउ टू मेंटेन द कॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है. सो धीरे धीरे होल्डिंग ऑफ यूरिन भी आने लगती है. बट द प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी द कॉर्ड इंजरी इज देयर, क्योंकि आपने स्पाइनल कॉर्ड को काटा हुआ है तो वो तो हमेशा परसिस्ट करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लैडर एंड रिलैक्सिंग द इंस्फिंक्टर वॉलेंट्री इज नॉट पॉसिबल. सो द प्रॉब्लम इज दैट now the bladder and sphincter tone may allow to maintain the continence of the urine, but the cord injury prevent. cord injury की वजह से there is this voluntary contraction is not possible. So this cord injury prevents the contraction of the bladder and relaxation of the sphincter voluntarily, ठीक है, because higher center control खत्म हो चुका है. No awareness of the filling. पेशेंट को अवेयरनेस अभी भी नहीं है. क्यों? बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड तो कट पड़ा हुआ है, तो जो असेंडिंग फाइबर्स ब्रेन में जाने वाले थे वो नहीं जा पा रहे हैं. नाउ देयर इज नो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, नाउ देयर इज ए अर्ज इनकॉन्टिनेंस. नाउ पेशेंट जो है उसकी कंप्लेंट चेंज हो गई है. पहले कंप्लेंट क्या थी कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें से कंटिन्यूअस ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन लीक हो रहा है. क्यों? बिकॉज देयर इज ए फुलनेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पूरा भरा हुआ है, और जैसे ही इसमें यूरिन ऐड होता है इट विल ओवरफ्लो. रिफ्लेक्स ब्लैडर और ऑटोमेटिक ब्लैडर, अब हो क्या रहा है कि पेशेंट को अर्ज इनकॉन्टिनेंस है. मींस अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट नीड इमीडिएट मिक्चुरेशन, वो उसको रोक ही नहीं सकता, एंड इट इज इनकॉन्टिनेंट मींस ही कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन. So there is a immediate or urgent desire of micturition and it cannot be controlled, ठीक है. So the complaint has been changed. Now patient ये कहता है कि मुझे हर 1 घंटे में या हर थोड़ी थोड़ी देर में इतनी तेज यूरिन मिक्चुरेट करने की इच्छा होती है कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, एंड आई हैव टू गो फॉर द मिक्चुरेशन, ठीक है. बट नाउ ही इज नॉट हैविंग द कंप्लेंट ऑफ कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन विच वाज अर्लियर इन एटोनिक ब्लैडर, ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस आप समझिए कि यहां पे ब्लैडर की मसल वॉल काम करना शुरू कर देती है, उनमें टोन आ जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहां पे होल्डिंग डेवलप हो जाती है. बट स्टिल इट इज नॉट वॉलेंट्री, बिकॉज जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है वो तो हम परमानेंटली कट कर चुके हैं. दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. नाउ द रेजिडुअल यूरिन इज ऑलवेज प्रेजेंट. अब होगा क्या कि जो आपका ब्लैडर है, इन केस ऑफ ऑटोमेटिक ब्लैडर, ये जो ब्लैडर है इसमें हमेशा रेजिडुअल यूरिन बचेगा. क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम ब्लैडर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, साथ साथ में स्फिंक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. क्यों स्फिंक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि जो हायर कंट्रोल था हमारा ब्रेन का, वो ये बोलता था कि जब ये कंट्रोल, जब हमारा डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम स्फिंक्टर को रिलैक्स होना पड़ेगा. और ये जो सिग्नल है ये कहां से आ रहे थे? ब्रेन से आ रहे थे. सो ब्रेन इज कंट्रोलिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर. जहां पे जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो स्फिंक्टर को रिलैक्स होना पड़ता था. बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो कनेक्शन है ये हम काट चुके हैं. अब क्या होगा कि रेजिडुअल यूरिन इज प्रेजेंट
बिकॉज ऑफ स्फिंक्टर डिससिनर्जिया. डिससिनर्जिया मतलब द हाइपर एक्टिव ब्लैडर कैन नॉट फुली एम्प्टी बिकॉज द यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिदम है, इन दोनों के बीच में जो एक इसके कॉन्ट्रैक्शन पे जब इसको रिलैक्स होना है, वो जो पाथवे है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया. उसकी वजह से क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी टाइम ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है. सो जितना यूरिन बाहर पूरा निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाता है बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन. एज द ब्लैडर फिल्स, साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, it will reach to the S2, S3, S4 segment. The efferent passes to the bladder wall and also to the sphincter, and there is the ultimate contraction of both. Clear? So this is the important thing which you have to remember कि यहां पे ये जो efferent हैं, ये efferent S2, S3, S4 से आ रहे हैं, and जो bladder wall के जो efferent हैं that is parasympathetic, और ये जो sphincter के efferent हैं that is from the pudendal nerve. सो दोनों ही पोडेंडल नर्व भी स्टिमुलेट हो गई और पैरासिम्पैथेटिक भी स्टिमुलेट हो गया. तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और पोडेंडल के स्टिमुलेशन से ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो स्फिंक्टर भी बंद होने की कोशिश करेगा और ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. नाउ विल हैव द अनदर इज ऑटोनॉमस ब्लैडर. देखिए, ऑटोनॉमस बॉडी मतलब वो बॉडी जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो. तो ये कब पॉसिबल है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर का जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो कनेक्शन है ये पूरी तरह खत्म हो जाए. तो ये दो तरीके से हो सकता है. या तो आप स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर दो. द लीजन इज नॉट अबव, द लीजन इज एट S2, S3, S4. या हम ये जो रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स की दोनों आर्म्स, मोटर और सेंसरी दोनों आर्म्स को काट दें. So it occurs if sacral segment of the spinal cord is destroyed. आपने क्या किया, सैक्रल सेगमेंट जो S2, S3, S4 है उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय कर दिया. So अगर आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया तो इनर्वेशन खत्म हो गया और रिफ्लेक्स आर्च खत्म हो गया. रिफ्लेक्स आर्च खत्म होने का मतलब बोथ सेंसरी एंड मोटर पार्ट्स और अफरेंट इफरेंट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. नाउ अब इसमें क्या होगा कि कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द ब्लैडर फिलिंग इज लॉस्ट. क्यों लॉस्ट? क्योंकि आपने ये जो सेंसरी आर्म है या अफरेंट आर्म है इसको काट दिया तो उसको अवेयरनेस नहीं होगी एंड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज एब्सेंट. क्यों? बिकॉज आप पूरे रिफ्लेक्स आर्च को ही खत्म कर चुके हो, आप S2, S3, S4 सेगमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर चुके हो. साइट ऑफ इंजरी क्या है? साइट ऑफ इंजरी होती है इफ देयर इज ए इंजरी इन द सैक्रल और लंबार रीजन, जहां पे आपका ये जो सेगमेंट है डिस्ट्रॉय हो जाता है. Now bladder wall is become again flaccid as it is not able to contract. Bladder wall क्या हो गई? Flaccid हो गई. ठीक है. As the bladder is flaccid, so capacity increased. Stress incontinence is the feature. मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट है उसके अंदर यूरिन रिटेंशन हुआ. यूरिन रिटेंशन होने के बाद whenever there is a sneezing or coughing, there is an increased intra-abdominal pressure and that pressure pushes the urinary bladder and patient will have the leakage. So leakage is associated with the stress and that is known as stress incontinence. The continuous overflow lead to the dribbling of urine. Bladder may be partially emptied by the manual compression, but there are high chances of back pressure effect. Back pressure effect क्या होंगे कि जब भी आप मैनुअल कंप्रेशन कर रहे हो तो आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो यूरिन जितना बाहर निकलेगा, अदरवाइज जो प्रेशर अंदर क्रिएट हुआ दैट विल क्रिएट द हाइड्रोनेफ्रोसिस और देयर मे बी असेंडिंग इंफेक्शन इनटू द किडनीज. ठीक है. सो जब आप ऑटोनॉमस ब्लैडर पढ़ेंगे, ऑटोनॉमस ब्लैडर का कॉज क्या है? ऑटोनॉमस ब्लैडर का कॉज है इंजरी ऑफ S2, S3, S4 और इफ यू रिमूव द बोथ सेंसरी एंड मोटर आर्म ऑफ द रिफ्लेक्स. इस ब्लैडर में प्रॉब्लम क्या होगी? इस ब्लैडर के अंदर दो चीजें हैं जो याद रखनी है. एक तो जो ब्लैडर है वो भी क्या हो गया? फ्लैसिड हो गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई एंड देयर इज ए कंटिन्यूअस ओवरफ्लो. देयर इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस ओवरफ्लो एंड दिस ब्लैडर नेवर कन्वर्ट इनटू द रिफ्लेक्स ब्लैडर. क्यों? बिकॉज आपने तो रिफ्लेक्स जो बनाते पाथवे वो दोनों ही पाथवे कट कर दिए. सो दिस ब्लैडर हैज टू एम्प्टी मैनुअली time to time, otherwise patient will have the continuous complaint of leaking of urine.
ठीक है। सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई होप यू आर एबल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ब्लैडर की नर्व सप्लाई क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है, और अगर हमारे कनेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यूरिनरी ब्लैडर के साथ, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ अगर डैमेज हो जाए तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्यों होता है और ये कितने तरह का होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।